शेयरिंग करूं। CA GB Modi sir, are you there? Modi sir? Yes sir. Yes. Okay. Yes Modi जी, sir आपने yes last episode भी आपने पूरा attend किया था, आप भी regular हैं, तो any feedback sir आपका? Sir, mind-blowing programs are going on, which is rather than professional, all the interest, and you are boosting to the you are giving boosting to the power of 49%. All your efforts are definitely good in the interest of the profession. Salute to you. Thank you sir. Thank you sir. In the year 2015, and now he is shifted at Mumbai, so he is handling at Dhule and Mumbai, both the offices, and he is also very good faculty on various subjects, especially on subsidy. So thank you very much sir. And Neha, I think you We should start. Okay. Hello friends, I am CA Neha Garg, your host for this inspirational evening. फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा 3rd एपिसोड है शी द रोल मॉडल का। आप सबसे हमें इतने कम वक्त में बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला है एंड आई वुड से आई रियली अप्रिशिएट दिस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सपोर्ट एंड लव फ्रॉम यू फ्रेंड्स। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू 3rd एपिसोड, मैं आपको जस्ट शेयर करना चाहती हूँ कि फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किए थे कल्चरल डिफरेंसेस और बहुत सारे चेंजेस अगर हमारे ऊपर थ्रो कर दिए जाते हैं तो उनसे कैसे डील करना चाहिए। यू आर नेवर टू लेट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। सेकंड जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने डिस्कस किया था, उसमें हमें इंस्पिरेशन मिली थी कि आज की सीता हमें कैसे बनना चाहिए। उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी सीखी थी कि son are not the only one who carry the legacy of their father, even the daughters can carry the legacy. और एक बहुत important point जो हमने सीखा था, positive attitude towards everything. So friends, जैसा मैंने आपको promise किया था कि आज का जो हमारा event है, आज की जो session है वो और भी खास होने वाली है, क्योंकि दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों जैसा आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से मिलो, खोलो अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। फ्रेंड्स, इन लाइनों को अपनी असल जिंदगी में जिन लोगों ने जिया है, आज हम ऐसे स्पीकर्स के साथ मिलने वाले हैं। इस उम्दा माहौल के साथ आज मैं बुलाना चाहूंगी हमारी पहली स्पीकर को, जो है औरंगाबाद से CA रेणुका देशपांडे जी। CA रेणुका देशपांडे has cleared her chartered accountancy in 2007. She is practicing since 2008. She is a partner with Anil Marvikar and Company and having her expertise in bank audits, income tax, GST and finance projects. She holds the post of First Lady Chairperson of Aurangabad branch of WIRC in 2016-17 of ICAI, covering Aurangabad, Jalna, Bid area of 1,000 chartered accountants and 5,000 CA students in the history of 30 years of Aurangabad branch. First Lady to receive privilege to hold the various posts in managing committee
as treasurer, secretary, vice chairperson, Vikasa chairperson since 2011. Awards and achievement while serving to her CA fraternity. During the tenure of chairmanship, Aurangabad branch of ICAI received the Best Branch Award, first prize at national level. Solely for the very first time in its history, total 167 branch all over India by the hands of Union Railway Minister CA Suresh Prabhu. Aurangabad branch won Best Vikasa Student Association Award, first prize at national and regional level under the chairmanship of Vikasa in 2014-15 by the hands of CA Piyush Goyal ji, Honorable Minister of Petroleum. The one and only one chairperson in whose tenure as branch chairperson and Vikasa chairperson, Aurangabad branch received Best Branch and Best Vikasa Award. Aurangabad branch received Best Commendable Branch Award for the year 13-14. CA Renuka ji has not only won the achievements and awards on professional level, she has won it on individual level too. She has won CA in social service in 2015 from 85,000 chartered accountants for the work in women empowerment by the hands of Shri Prakash Ji Jaiswal, former Union Minister for State of Home Affairs. From 85,000 chartered accountants, only 40 chartered accountants across the region, which includes the state of Maharashtra, Goa and Gujarat. She also received Navrang Puraskar by the hands of Honorable Minister of State, Mr. Arjun Kotkar in October 2016. वाओ रेणुका जी, आपके पास तो अवार्ड्स की झड़ी लगी हुई है। बहुत सारे अवार्ड्स रेणुका जी ने जीते हैं। इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारी आज की पहली स्पीकर रेणुका जी का। फ्रेंड्स, आज की हमारी सेकेंड स्पीकर है सीए प्रज्ञा शाह। She has cleared her chartered accountancy in November 2008. She is looking after the practice of 40 years old practice of her father-in-law in Pune. Friends, she has immense belief in building long-term mutual benefit relationship. She has scored highest marks in Marathi language state level board in 10th and 12th. She has won many trophies in chess championship at school and college level. Performed plays at All India Radio, Akashvani Kendra. She did her diploma in information technology through Manipal. She got many prizes for math and science projects. Won many trophies for handwriting competition at national level through Camlin. Won many trophies for drawing competition at a state level. She has her keen interest in gardening, playing chess, watching news and cleaning the surroundings. Wow, Pradnya ji, आपकी तो hobbies भी हमें inspire कर रही हैं. So with this introduction, I would like to welcome CA Pradnya Shah. Friends, आज की हमारी third speaker हैं CA Jaya Agrawal. CA Jaya Agrawal has become chartered accountant in May 2009, and she is also holding a degree of company secretary. With more than a decade of experience in teaching commerce students, her career and skill have grown by teaching students pursuing various commerce courses like BCom, MCom, MBA, CA Foundation, CA Inter, and CMA. She managed to acquire CA and CS degrees while she was teaching to her students, and she cleared her exams in first attempt. Not only she's cleared her exams in first attempt, she even scored rank 3 times in CA finals, in CS finals, and in CA Inter. Wow. She has also cleared NET exam with JRF twice, both in first attempt. She always believed in learning something new. So before teaching to her students, she goes through the various materials available. She takes the responsibility to teach any subject only when she feels firm and she grasps the concept. She scales up her efforts and make concepts to clear the students. She always tries to explain in a way which is entertaining and easily adaptable. Teaching is not only her profession.
This is her passion. She loves teaching. Her goal as a teacher is to make concepts to her students very clear. Recently, she started poetry. She writes quotes, she writes motivational speeches because she believes it is not necessary that we can teach or guide students only through books. So she tried to guide and motivate people through her writings as well. वाओ जया जी, बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन एंड बहुत ही अच्छी सोच है आपकी कि सिर्फ बुक्स से ही हम नॉलेज नहीं ले सकते. विद दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू वेलकम आवर थर्ड स्पीकर सीए जया अग्रवाल. Thank you so much, Neha, for such a wonderful introduction. Thank you. So, आज के व्यूअर्स को भी मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे स्पीकर तो बहुत ही वंडरफुल है ही आज, बट हमारी ये जो ब्यूटीफुल सी व्यूअर्स है इनके लिए भी आज कुछ है, एक सरप्राइज है इनके लिए, जो कि हम ये क्वेश्चन हम अपने स्पीकर से डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद एक सरप्राइज रिवील होगा. एंड आई वुड लाइक आवर ऑडियंस टू पार्टिसिपेट as much as they can because it is really going to be interesting. So with this we will move on to Renuka ji. Renuka ji, my first question for you is, your journey was full of ups and downs, right from the start of being chartered accountants, then starting your own practice and becoming the first lady chairperson of Aurangabad branch. We have even heard a story that when the chairmanship was first offered to you, you refused to accept it. What was the reason behind it? And we would like to hear a summary about your journey. Over to you, Renuka ji. Yeah. Thanks, Neha. First of all, congratulations to Balkishan ji for this wonderful forum. And congratulations to Neha also. She is gracing the event very nicely. And thank you for inviting me and giving me the opportunity. About my journey, yeah, first I would like to tell you how I started my CA. It took me back 25 years ago when I passed my 10th exam. I missed the merit just by 5 marks. The primary school teacher, and the whole family burden was on herself because loss of my father suffered a loss in business, so economic condition was not so good. So I have decided to do rather than joining science stream, becoming doctor and an engineer. I decided to become a CA and join commerce stream. But everybody got surprised because at that time it was just like room milky. When you got 90% above, you should take science and join and become doctor and engineer. But I decided to do CA, but was not having much information about CA, not knowing any CA personally, and whatever information we are getting, it was just negative. Then my family suggested to do it after graduation. Then after graduation, I joined the office of Indapurkar sir. After joining office, after some days, I could not do registration because of some problem. When sir comes to know, without knowing much, he was not knowing much about me or my family. On the next moment, he paid my registration fees, and because of whom my journey towards CA was started. After that, I have given first group and cleared the first group in first attempt. But again, one hurdle, my marriage was fixed, and again, everybody put question mark on my career, like now ab to kya CA hoga. But I was firm. Then got married. After adjusting all the things, new home, new culture, first year rituals, and all the things, I had cleared second group and completed articleship also. So the halfway was done and the major part final was remaining. Then in final again further step for family.
I got pregnant, so still I gave one group, but could not clear it in aggregate. Then I was, then my GMCS was also pending. Then, but as I was not sure after baby is born that how I could able to give time. Then during 8 months of pregnancy, I had joined GMCS. It was very difficult to sit for 6 hours and was very awkward too. But for my aim, I have to. I was ready to do anything, and I completed GMCS. Then immediately after completing that, in 20 days, I gave birth to my little angel. After 15 days of born of baby's birth, I have filled the exam form for final, and it was very experimental to give exam at that time, because it was very difficult to manage her, and more important was during her during exam time, for 2 months, then it was very difficult to go out leaving the 2 month baby. But my daughter supported well, and my exam went smoothly with the help of my mother, and I cleared that group in that attempt, and another group also cleared, and finally I become chartered accountant. After that, the question was whether to start, whether to do job or do practice. In our Maharashtrian family, general tendency is to do 10 to 5 job and have fixed income like salary, but I prefer to do practice. Uh, First I started work on assignment and gradually get my work, increase my practice, my own practice, and set up my own office infrastructure. Then after setting the routine, I become active in branch committee, and started working there. And then next year immediately I joined the branch managing committee. When I joined managing committee, I was just want to do something for our fraternity. But and by joining the branch committee, I have increased my responsibility manifold, like towards family, towards my daughter, towards office work, and my daughter was playing chess, so her tournament was also there, and again branch responsibility. But God gave me courage to handle all the responsibilities. And then by working on various posts, I also aspire to become chairperson. Yeah, and as told by Neha, means I received the opportunity to become chairperson during the third year of tenure only. But that was by luck. That was by cheat. I offered that chairmanship, and I want to become chairman on my merit, and not by taking someone chance. Like one senior member was there who was whose tenure, whose chairmanship was due. So I sacrificed my chairmanship, and because of this, it was not sure. I again lengthened the chairmanship by 3 years. I again have to face election in future, and again have to face new members in managing committee. But uh, when you are good to others, you do some good, you will also receive good. Life is like an echo, and I experienced the same. After doing work again, then rather than me, every member of Aurangabad branch was more eager to see me as chairperson as Aurangabad branch, and finally, again in next term, I become chairman in 16-17. I become the first lady chairperson of Aurangabad branch. And before me, there was one lady who could not reach to that post, but because of support of members and my family,
I become the chairperson, and in that year was full of challenges like manage office. My daughter's Wow. stage tournament. She was in Indian team at that time, so have to go for 2 international tournaments. But by God's grace, I have done all the things and received best branch award also in that year. So Wow, this wow. was my journey. वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है रेणुका जी। और जैसा कि आपने कहा कि आप बहुत फर्म थी अपने सीए के डिसीजन को लेके, और आपका एम बहुत क्लियर था और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थी। आई थिंक सो ये सब बहुत जरूरी है हमारे लिए, और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए कि इतना सब मैनेज करते हुए आपकी डॉटर नेशनल लेवल पे चेस प्लेयर रही और बहुत उनने इंडिया का नाम किया। वाओ। So with this, we will move on to Pradnya ji. Pradnya ji, my question is for you now. We have often Yeah. observed, we have often observed that women are made this way. They feel guilty if they do something for themselves. What do you like to say to our viewers on this? How important is it to take out time for yourself? Yeah, thanks, Neha. First of all, you and Balkishan sir are doing very good job, and it's always a pleasure to be with you guys. It's really a good thing. Thank So you. coming back to the topic, I would like to tell you that most of the ladies, both the categories, housewife and working, we ignore ourselves. हम इतना busy हो जाते हैं all the time. We have tension of kids, we have tension of food, what to make, we have other career tension is there, everything is there. But I would suggest that we should at least take 1 hour in a day for yourself. It is very important by doing exercises. Early in the morning when you get up, just give 1 hour for that. Your full day you are going to blast. Whether it's your cooking or whether it's your working, it doesn't matter. But 1 hour is very important. I'm not saying that you have to go in gym. You can go for a walk. You get maximum oxygen. When you go early in the morning. Then now there are many channels on YouTube as well as on TV where they show continuously. They are showing yoga, how to learn and all. So we can refer to these channels and we can try for ourselves. And it is very important. Along with that, you also have a balance in your food. Like just having junk food and giving over to your kids and family, that is not important. You have to make a proper diet plan also when you are planning for a day. So that's what I feel it's very important. What happens, giving time for yourself, it's a general concept. What we do, we spend time on TV, then we spend time on chatting, then going in parlor. Now, because of Corona, nothing is there. But still, this is what generally we ladies do. But other than this, it's most very, very important thing in your life is exercise. Not only ladies, I'm talking about youngsters, I'm talking about kids, even for everyone it is. Because if you now invest your time in exercise, you're going to excel in your future. And always it is very important, we want healthy life. See, life living is not that important, but if you live your life healthier by giving some time for your exercise, it is very important. That's what I feel. Go back to you, Neha. वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन प्रज्ञा जी। आपने ये बहुत अच्छे से समझाया है कि गिविंग टाइम टू योरसेल्फ डज नॉट मीन स्पेंडिंग टाइम ऑन योर टीवी और ऑन योर पार्लर्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू follow a diet chart, to follow an exercise routine in the morning. And I surely agree with you कि आपने अगर सुबह एक बार अपना रूटीन ऐसे स्टार्ट कर दिया, पूरे दिन जो आपकी एनर्जी रहती है, you cannot compete with any other energy. Very beautifully explained. Right. With this, we will move on to Jaya ji. जया जी, आप बहुत छोटी थी, 11 साल की उम्र से ही आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। आपकी क्लासेस में होती थी कुछ 7 से 8 घंटे की। इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे सिर्फ खेलने कूदने के अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं, आपने अपने क्लासेस लेने स्टार्ट कर दिए। आप 7 से 8 घंटे क्लासेस में बिता दी थी। आपका खुद का स्कूल होता था। कैसे आपने मैनेज किया इतना सब कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नेहा फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म, एंड बालकिशन सर जी कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड नेहा, थैंक यू फॉर पुटिंग फॉरवर्ड दिस वंडरफुल क्वेश्चन, बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी सबके साथ शेयर करूं, और अगर मैं कुछ लोगों को भी मोटिवेट कर पाऊं
बिकॉज हम लोगों का नजरिया क्या होता है कि जब लाइफ में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो हम लोग एक्सक्यूज देकर बैठ जाते हैं कि मेरे पास टाइम की कमी है, कोई बोलता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करूँ। तो मैं सबको ये बताना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। तो पॉइंट इज कि प्रॉब्लम्स क्या है वो नहीं देखना है, आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हो वो जरूरी है। अगर आपने अपना ये पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया ना कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, तो आप हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिवली रह सकते हैं। तो जो मेरी लाइफ का रोलर कोस्टर है ना, वो स्टार्ट हुआ था जब मैं क्लास 6 में थी। क्लास 6 से पहले एक एकदम मस्त, मैं एकदम बचपन अपना बिता रही थी। पापा ने मुझे सब फैसिलिटीज दी थी, सबसे अच्छी स्कूल, सबसे अच्छे कपड़े। मेरा जो बचपन था वो बहुत अच्छा था। लेकिन जब मैं क्लास 6 में थी तो पापा की फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसके कारण हम लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ था। तो मेरी जो एल्डर सिस्टर है उन्होंने सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब मैंने देखा कि दीदी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, तो उस वक्त मैं इतनी मेच्योर हो गई थी कि मैं अपनी फैमिली की पोजीशन को समझ पाई। तो मुझे लगा कि आई शुड ऑल्सो फाइनेंशियली सपोर्ट माई फैमिली। तो मैंने क्लास 6 में सिर्फ 3 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था पढ़ाना। उसके बाद वो जो पढ़ाने का और पढ़ने का सफर था वो साथ में ही चलता रहा। राइट फ्रॉम क्लास 6 अभी तक मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा ही रही हूँ। तो जैसे लोगों की हैबिट होती है ना कि रोज बेटे के साथ खाना खाना है, रोज भगवान की पूजा करनी है, तो मेरी हैबिट हो चुकी है कि रोज स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। अगर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो वो मेरा दिन मेरे लिए इनकम्प्लीट होता है। तो टीचिंग हैज बिकम माय हैबिट, माय पैशन, नॉट ओनली माय प्रोफेशन। अब क्या, जब मैंने 6 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसके बाद जब मैं 11th, मेरा 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा था, मैंने 11th 12th में बायो साइंस लिया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन मुझे 11th 12th में इतना पता चल चुका था कि अगर आप साइंस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम एज वेल एज मनी। और मेरे पास ना तो टाइम था, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, एज नेहा जी सेड कि 7 to 8 आवर्स मैं कोचिंग ले रही थी, और प्लस ना मेरे पास फैमिली के पास इतना पैसा था कि मैं हाई फीस पे कर सकूं। तो कॉलेज में आते ही मैंने कॉमर्स ले लिया। अब जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात करूँ, तो जैसे ही मैं साइंस से कॉमर्स में आई थी, फर्स्ट ईयर में मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग में 100 में से 100 आए थे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन था कि साइंस से बायो साइंस से कॉमर्स में आकर मैंने पहले ही एक सब्जेक्ट में 100 स्कोर किया और ओवरऑल मेरे 69% बने थे। तो जो कॉलेज के टॉपर्स थे ना, उसका जो थर्ड रैंक होल्डर था उसका 71% था और मेरा था 69। तो मैं बड़ी खुश थी कि यार साइंस बैकग्राउंड की हूँ, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, 69% आके बहुत अच्छा है। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं 2% और एक्स्ट्रा लाती तो मैं रैंक ला सकती थी। ये मेरा पर्सपेक्टिव था। अब मेरी लाइफ में ट्विस्ट कब आया, जब मैंने सीएस इंटर का एग्जाम दिया था। सीएस इंटर का जिस दिन रिजल्ट आया, मुझे अभी भी याद है, हम उस वक्त साइबर कैफे जाते थे अपना रिजल्ट देखने। तो मैं गई वहां पे, अपना रोल नंबर डाला, वहां लिखा आया पास। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गई। घर पे आए, हम सब फैमिली वाले मस्त सेलिब्रेट कर रहे थे। पड़ोस में, आस पड़ोस में मिठाई सी बांट दी कि जया पास हो गई है फर्स्ट अटेम्प्ट में। जब तक मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि जया तेरी ऑल इंडिया 23rd रैंक बनी है, उसको थैंक यू बोलने की, और मैं से पास हुआ ये देख के आ गई थी ना। अब उसको थैंक यू बोलने की जगह मैं उसको पूछ रही हूँ क्या बोल रही है, सच बोल रही है, मतलब आई वाज आस्किंग हर। तो आई थिंक मेरी लाइफ का जो ट्विस्ट एंड टर्न था कि लाइफ की तरफ जो पर्सपेक्टिव है वो उस दिन चेंज हुआ। उस दिन भी नहीं, उसका एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब जब मैंने सुना कि मेरी 23rd रैंक है, तो अपन हमेशा क्या स्कूल वगैरह में फर्स्ट सेकंड थर्ड सुनते आए। तो मुझे क्या लगा कि इंपॉर्टेंस फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स का होता है, 23rd तो बहुत पीछे है। तो उस दिन भी मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी। जब नेक्स्ट डे मैंने अखबार में देखा कि हमारे राजस्थान पत्रिका जो था, मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ फ्रंट पेज पे लोगों की फोटो आती है जो भी टॉप ऑल इंडिया में रैंक लाते हैं, तब मुझे पता चला ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो दिन था जिस दिन से मेरी जो लाइफ की तरफ पर्सपेक्टिव, पढ़ाई की तरफ था, वो चेंज हो गया। अब तो मैंने सोच लिया था कि अगली बार जो भी एग्जाम्स होंगे मुझे रैंक लानी है। तो नेक्स्ट मैंने सीए फाइनल, सीएस फाइनल जब दिया, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे अखबार के फर्स्ट पेज पे अपना फोटो चाहिए। वो डिटर्मिनेशन था, अंदर वो आग थी, और उस आग के कारण मैंने अपनी तैयारी भी ऐसे की कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे सीए फाइनल और सीएस फाइनल में दोनों बार रैंक मिली। अच्छा, ये सब शेयर करने का सिर्फ एक यही रीजन है कि जो भी लोग सुन रहे हैं, हम लोग कई बार क्या होता है कि जस्ट सेटल फॉर द नॉर्मल लाइफ में जो चल रहा है। जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं वो खुश है कि भी पास होते जा रहे हैं, जो लोग डिस्टिंक्शन आ रहे हैं वो डिस्टिंक्शन में खुश होते हैं। पर मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि डोंट सेटल फॉर द नॉर्मल इफ यू कैन अचीव द बेस्ट। अगर आप अलग कर सकते हो, आप बेस्ट कर सकते हो, तो क्यों नॉर्मल के लिए सेटल होना। और वो मुझे तो पता चला था जब मेरी पहली बार रैंक बनी।
तो ये मेरा जर्नी था कि कैसे मैंने ये सब किया सीरियसली। वाह जया, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी आपकी, और जो डिटर्मिनेशन की आपने बात की, बिल्कुल। और why to settle for normal? Of course you have something in you, तो अपनी आग जगाओ और लग जाओ लाइन पे। Do something extraordinary you have in you. So with this we will move on to रेणुका जी। रेणुका जी, शायद मैं ये स्किप कर गई, आप हमने सुना है आप एक ट्रेंड योगा टीचर भी हैं। सो व्हाट मेड यू चूज योगा ओवर, आजकल सब लोग जिम जाते हैं, और जुम्बा जुम्बा बहुत फेमस है, सब लोग को जुम्बा पसंद है, म्यूजिक चल रहा है एंड दे आर डांसिंग। सो ये सब इतना एक्साइटिंग, उसके ऊपर आपने योगा कैसे चूज कर लिया? Actually, yoga or gym and Zumba, it's not comparable at all. Yoga means it's not only a form of exercise. Yogasan is one part of yoga, and it not only it is a physical exercise of body. It is a balance between body and mind. Yoga means, shall we go through some technical? Yes. Yoga means it is derived from the word in Sanskrit yuj. Yuj means to connect. Means it's to connect self with the spirit of universe. I go back, and Mahamuni Patanjali ji around 2500 years ago told the concept of yoga, Ashtanga Yoga, which means yoga chitta vritti nirodha. Means chitta means our mind, vritti means our various thoughts in the mind, and nirodha means obstruction. So what is this? The main purpose of yoga is to prevention of the mind from its wandering, and to take you towards that stage. The yogasana is one of the steps. So I don't know, means whether we'll go to that stage, but still to relax our body, to relax our mind, I will always prefer yoga. And in this competitive environment, when we are trying to control everything, like to grab money, to struggle, to be in the competition, but we don't have any control on our own body and mind. So for that, yoga is must to balance your body and mind. And yoga teaches us to go to deeply inside ourselves. So always, रेणुका जी, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। सो आप ऐसा कहना चाहती है कि योगा मतलब, हम लोग तो ऐसा समझते हैं कि योगा मतलब होता है एक आसन डाल के बैठ जाओ और अपनी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ करते रहो, और उसको इधर से मोड़ दो उधर से मोड़ दो। सो आप ऐसा कहना चाह रही हैं कि योगा ये नहीं होता है? नहीं, योगा नहीं, ये नहीं होता है। ये योगा की थर्ड स्टेप है। योगासन से अष्टांग योग है, जिसमें लास्ट स्टेप समाधि है। ये जो थर्ड है योगासन है, उसके बाद प्राणायाम है, एंड उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। इट्स लाइक दैट। So yogasana is just part of it, and it is still it's for our body. It's not at all comparable with other exercises. It's much better than other exercises. वाओ, मतलब आप कह रही हैं कि योगा जो हम समझते हैं कि अपनी बॉडी के साथ करना है, वो सिर्फ एक पार्ट है, और इसका बहुत मेजर कंस्टिट्यूट जो है वो हमारा माइंड है, हमारे माइंड को डेवलप करना है। Am I right? Yes. वाओ, सो आज हमें योगा के बारे में एक नया एस्पेक्ट जानने को मिला। सो फ्रेंड्स, मैं तो ये नोट करने वाली हूँ कि योगा मतलब अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना सिर्फ नहीं होता है। यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर माइंड, सो you can control your mind. Wow. So with this, we will move on to Pradnya ji. Pradnya ji, when we think about our first step towards our career, when our interest coincides with our family business, so वो एक रिलीविंग मोमेंट हो जाता है हमारे लिए कि हमारे स्ट्रगल सेव हो जाएंगे, सिंपली हमारा जो है इंटरेस्ट मैच हो रहा है हमारे फैमिली बिजनेस से। सो व्हाई नॉट टू जॉइन फैमिली बिजनेस एंड टू डेवलप फॉर फैमिली बिजनेस। सो आपकी जर्नी में भी कुछ ऐसा ही था कि आपके फादर इन लॉ जो थे उनकी खुद की प्रैक्टिस है और आपका इंटरेस्ट भी प्रैक्टिस में ही था। सो बट
हमने जैसा आपकी जर्नी देखी है, आपने अपनी फादर की फर्म जो है वो काफी लेट जाके कुछ 6 to 7 इयर्स के बाद में ज्वाइन की, आपने स्टार्ट जो है वो किसी और फर्म से किया। सो क्या रीजन था कि आपने अपनी फर्म से ना शुरू करके किसी और फर्म को ज्वाइन किया? यस, यहाँ पे ऐसे रहता है कि जनरली कंसेप्ट रहता है, फैमिली की प्रैक्टिस है, फैमिली का बिजनेस है, और आगे अगर उनका बच्चा वो बिजनेस देखता है तो इट इज वेरी इजी फॉर देम। एक जनरल कंसेप्ट है, बट आई विल टेल यू विथ माय एक्सपीरियंस इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टास्क. See what happened, my father-in-law always wanted me to join immediately after CA, but I wanted to know what is my market value by giving myself best. जब मैंने job किया, so the timings were so we got to learn discipline. Like timing were very strict, working was different, and managing the team. Big CA firms में it's very important how you execute your management level. So that is very important. So after getting experience from all this, when I joined my father-in-law's office, then that was a time where the challenges started coming in. For example, कैसे रहते हैं उनके जनरेशन के जो लोग रहते हैं, they don't adopt you. उनके लिए क्या रहता है कि एक 40 years से the person who is sitting on the main chair, they are very much comfortable with him. And suddenly, if you come and sit on that chair, it's very difficult for them to communicate with you, very difficult to work with you. So you have to make them to trust you, whatever you have to step into your father-in-law's shoes, and then you have to discuss, you have to consult with your clients. So that was very difficult task, because change over karna and direct practice karna, isme bahut farak hai. So that is one. Plus one more point is even with the youngsters nowadays, we know even kids, they are with lots of better than us, they run their mobile, everything better than us. जो यंगस्टर्स हमारे ऑफिस में आते हैं, दे आर लाइक दे हैव डन मार्केट रिसर्च, उनको हमारे से भी आगे एडवांस स्टडी करके आते हैं. सो इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर सिटिंग देयर, यू हैव टू कंसल्ट देम with prior studying, with whatever the data, whatever the knowledge they want, whatever the case is, and then you have to execute your work. So it is actually very difficult task. And trust जो हम लोग करते हैं, तो आगे के पार्टी को, आगे के क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग, व्हेन यू आर डिस्कसिंग द केस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव थorough study. So the study part is very important. And secondly, I would like to tell you that whenever youngsters also come, you should have updation with all the sections and whatever the area we have, like income tax, GST, whatever strategies are there. So you should make them 100% comfortable with your discussion. So that's what I feel. And it is not only ladies or gents, again coming back to that, it's for everyone. It's your personality. Ultimately, your personality speaks. So that's what I feel it is very important. Back to you, Neha. प्रज्ञा जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. एंड जो आपने कहा कि आप बड़े फर्म्स में जाते हैं, आप टीम मैनेजमेंट सीखते हैं, एंड यस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी द लेगेसी जो 40 इयर्स से किसी ने सेट कर दिए हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, और हम नए नए आते हैं और उसको कैरी कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है. बट आपने काफी ब्यूटीफुली उसको हमें सिखाया है कि आप स्टडी कीजिए, आप वेल नॉलेज अपडेटेड रहिए, और देन यू ट्राई टू डू योर job. So very beautifully explained. With this, we will move on to Jaya. Jaya ji, you come from a small town. Everybody has a fear that when they move to metros like Mumbai, a lot of things changes, like your attire, your vocabulary, your tonality, and study method, technology. So there is a fear in mind कि जो हमारे competitors हैं, whether we will be able to compete with them because they are, from these metro cities and we just enter into it. So like अगर हम जनरल वे में भी बात करें, अगर मुंबई में ही कोई छोटे फर्म से आर्टिकलशिप कर रहा है एंड सडनली आफ्टर क्लियरिंग CA वो एक कॉर्पोरेट में जॉब ढूंढ रहा है या एक बड़ी फर्म में जॉब ढूंढ रहा है, तो वही कॉम्पिटिटर्स को देख के एक फियर आ जाता है कि ये लोग तो ऑलरेडी बिग फोर्स में आर्टिकलशिप किए, या तो ये ऑलरेडी मेट्रो से हैं, दे ऑलरेडी नो अबाउट टेक्नोलॉजी, सो कैसे मैं उनसे कॉम्पीट कर पाऊंगी. सो आपको भी ऐसा कुछ फियर आया था जब आप जोधपुर से मुंबई आई थी, और जब आपने ट्राई किया था, आई थिंक सो आपने शायद NM कॉलेज में भी जॉब ट्राई किया था, और आप एक बहुत ही रेप्यूटेड क्लासेस में भी टीचिंग कर रही थी. Okay, thank you so much, Neha, for putting forward this question.
बिकॉज मेरी लाइफ में जितना लोग अपनी सीए की जर्नी वगैरह बताते ना, सबसे टफ था मेरे लिए जो जोधपुर से मुंबई शिफ्ट होने वाली जर्नी थी और सेटल होने वाली जर्नी, वो सबसे टफ रही है। तो आई वुड लव टू शेयर दैट कि यस बिल्कुल, जब भी हम किसी छोटी सिटी से बड़ी सिटी में शिफ्ट होते हैं तो हम लोगों के दिमाग में वो डर होता है, और उसका आधा क्रेडिट जाता है हमारे खुद के रिलेटिव्स को और हमारी जान पहचान वाले लोगों को। जैसे ही आप शिफ्ट होके आप उनसे बात करोगे तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ की लाइफस्टाइल ऐसी है, यहाँ के लोगों का कल्चर ऐसा है, तुम कैसे सेटल होगी, तुम इस तरह से बात करती हो, ये सब करके आधा वो आपके दिमाग में डर डाल देता है, और जो कसर रह जाती है वो हम पूरी कर देते हैं। जैसे हम शिफ्ट होते हैं हम देखते हैं यार ये तो, जैसे मैं कोचिंग में थी, मैं बोर्ड पे पढ़ाती थी, तो देखते कि वो तो टेक्नोलॉजी पूरा टेट यूज कर रहे हैं, उनका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और हम सब तो अभी तक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। तो जो कसर रहती है वो अपन को खुद को डराने की वो हम पूरी कर देते हैं। और सेम जो सिचुएशन थी उसमें मैं थी। तो जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो सबसे पहले मुंबई के एक रेप्यूटेड कॉलेज में मेरा इंटरव्यू था। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, देयर वाज अ सिंगल पोस्ट और उसके लिए 40 कैंडिडेट्स थे। मैं जब बैठी हूँ तो अपनी आदत होती है ना आसपास देखते हैं कि और अपने कॉम्पिटिटर्स को, जब जैसे ही मैंने देखा तो लोगों के हाथ में इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स थी उनके एक्सपीरियंस की, कि किसी ने इधर कॉलेज में पढ़ाया है, दे वर डिस्कसिंग। एक्सपीरियंस मेरे पास भी था पढ़ाने का, बट उनके पास था मुंबई के कॉलेजेस का, और मैंने पढ़ाया था अपने घर पे खुद की कोचिंग क्लास में। तो वहां पे मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि यार मेरे पास तो ये एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आधे लोगों के चेहरे बोल रहे थे, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनके जो चेहरे पे ग्रेस था कि लग रहा था इनको ही जॉब मिलना है, इन्हीं को सब एक्सपीरियंस है। तो वहां पे एक बार मैं बहुत डर गई थी, लेकिन हाँ मुझे खुद पर ये कॉन्फिडेंस था कि अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को मुझसे पूछेंगे, दैट आई कैन आंसर वेरी वेल, क्योंकि इतने साल में ये तो मैंने कमाया ही था। तो जब मेरा हम सबका इंटरव्यू हो भी गया, एंड टू माय सरप्राइज 3 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें से एक मैं थी। तो वहां पे थोड़ा सा खुद पे, हाँ 3 में से फर्स्ट टॉप 3 में से आई वाज देयर। तो आई वाज ग्लैड कि हाँ चलो इतने साल जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं गई। उसके बाद हम लोग का सेकंड राउंड हुआ। सेकंड राउंड के अंदर आई वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। तो वहां आउट ऑफ दोस 40 कैंडिडेट्स, तो यहाँ मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर आप कोई भी फील्ड में कुछ काम कर रहे हो बहुत सालों से, तो हम लोग क्या करते हैं, खुद ही को अपने दिमाग में एक इमेज बना देते हैं कि हम लोग ने तो छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, इतने बड़े कॉलेज कैसे फेस करेंगे यहाँ के कॉम्पिटिटर, या एक छोटी सी फर्म से आए और हम लोग इतनी बड़ी फर्म वाले लोगों से कैसे कॉम्पीट करेंगे। बट द थिंग विच मैटर्स इन लाइफ क्या होती है पता है, अपना खुद का एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, और उससे भी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है ना कि यार मुझे ये चीज अच्छे से आती है, तो यू कैन आउटशाइन अदर्स। मेरे केस में भी यही हुआ था। लेकिन ये चीज हुई, मेरा वहां सिलेक्शन हो गया, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब मैं घर पे आई, मुझे कॉल आ गया था कि आई एम सिलेक्टेड, और मैंने यहीं पे बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इंटरव्यू दिया था, वहां पे भी मैं सिलेक्ट हो गई थी। और क्योंकि मैं शुरू से कोचिंग नहीं पढ़ाती थी, तो आई ऑप्टेड फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट। वहां का पढ़ाने का तरीका मेरे तरीकों से बिल्कुल अलग था। मैं हमेशा बोर्ड पे चौक से पढ़ाने वाली इंसान, उन लोगों की प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, ऐसे इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन भी कर लिया, और उन्होंने हमें अच्छी खासी ट्रेनिंग भी दिया था कि हाउ वी हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। अब मैं अपना पहले लेक्चर पे गई, हमारा 3 आवर्स का लेक्चर होता है, तो अराउंड 1.5 आवर मैंने उनके पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, जो स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया ऑनलाइन, जो भी उनका सिस्टम था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि मैम कुछ डाउट्स रह गए, मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ, तो उनको वो कैलकुलेशंस जो स्टेप्स थे वो नहीं समझ में आ रहे थे। तो मैंने कहा ओके आफ्टर ब्रेक वी विल टेक दिस। तो ब्रेक के बाद जब मैंने वापस स्टार्ट किया तो मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ गई, वही बोर्ड, वही चौक और वही जया मैम, एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग। तो वो स्टूडेंट्स इतना खुश हो गए थे, उनको जब मतलब कभी वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं आए समझ में जितना उनको वो बोर्ड पे मैं समझा पाई। तो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप बोर्ड पे ही लीजिए। जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर था एक्चुअली, तब स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम प्लीज स्लाइड्स मत यूज करिए, आप मुझे बोर्ड पे ही समझाइए। तो आई फॉलोड व्हाट दे वर सेइंग, भी बच्चे हैप्पी है तो हम खुश है, टीचर्स को और चाहिए ही क्या। तो मैंने वो पूरा लेक्चर उनको बोर्ड पे समझाया। स्टूडेंट्स तो बहुत खुश थे, पर मेरे को दिमाग में डर था कि अब सीनियर्स से कॉल आएगा कि भाई आप जो हमारे रूल्स है उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा। तो जब मैं क्लासरूम से बाहर आई ना, तो मेरे सीनियर वहां बैठे थे, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड कि अभी कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि मैं उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो ही सेड कि मैम मैंने आपका रिव्यू लिया है, स्टूडेंट्स जो है आपके पढ़ाने के तरीके से बहुत खुश है। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, बट एक प्रॉब्लम है कि उनको खुश रखने के लिए आई विल हैव टू यूज द बोर्ड इन द चॉक। तो सर ने कहा कि मैम एज फार एज द स्टूडेंट्स आर हैप्पी आई एम ओके। अगर बच्चे खुश है तो आपका जो तरीका आप यूज करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लाइफ में एक और चीज सीखी कि अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो जरूरी नहीं कि आप भेड़ चाल पे चलो।
जो क्राउड जो चीज कर रही है, लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी यूज करो, लेकिन अगर आप अच्छे हो कि मैं बोर्ड पे अच्छा समझा सकती हूँ, तो क्यों अपना ओरिजिनल चीज को आप। तो मैंने ये चीज सीखी कि बी ओरिजिनल, क्योंकि फोटो कॉपी की वैल्यू हमेशा कम होती है। अपना Wow. रास्ता खुद तो अपना That's a रास्ता खुद beautiful बनाओ। line. यस, अपना रास्ता खुद बनाओ कि लोग आपको फॉलो करें और आपको लोगों के पीछे पेड़ चाल में न चलना पड़े। ये मैंने Wow. सीखा। मैं नोट करूंगी जया जी ये लाइन, और आपकी इस स्टोरी पे मैं इतना ही बोलूंगी, डर के आगे जीत है। यस वो डर So, एक्चुअली हम लोग खुद अपना माइंड का है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल, so true. So we will move on to Renuka ji. Renuka ji, you have won an award for being CA in social work, as we have discussed in your intro also. आपको अवार्ड्स भी मिले हैं उसके लिए. So आपने एक बहुत ही commendable job किया है कि आप for spreading the awareness about women feticides. So how did you started this noble cause? Yeah. Actually, I was having interest of drama in school days. My mother was state level drama artist and she used to write and direct many skits. So whenever I get chance, I used to participate in various skits written by my mom. One of our skit was Mulgi Havi, means I want daughter, which was based on Save Girl Child, right? You explained it that against women feticide. So we had done this skit, and we won many prizes for this skit at state level, and it was selected for performance at a very prestigious Ellora Festival of Aurangabad. So because of that, it became very popular, and many sections of the society invited us for various shows of our skit. So we have also done various shows to create awareness among people. Then one Hedgewar Pratishthan is there at Aurangabad, is a big medical hospital. They run various projects in slum and rural areas for women empowerment. So they invited us to do shows at their various projects. So we went as a small social contribution from our side. We went at various areas, various villages, and give performance of our skit. Because of that performance, I don't know how many people have changed the mind and stopped doing such things. But definitely we realize during the skit that they are realizing that this is the wrong thing. They couldn't control their emotions while watching our skit. We experience it, so we continue to do the shows, and not only we have experienced this mentality not only in rural and uneducated people, but in urban and like sophisticated people also have this mentality, and it's very heartening that people can't change their mind. Even many people used to ask me why I stop on one girl child. Why always, कि एक लड़का ही कुल का नाम रोशन करेगा? यार मेरी बेटी, she is not even make our family, she make a nation proud on herself. So why always son only? So need to change this mentality, and we had done in some means in this way, by way of skits we try to create awareness, and for this it is recognized by WRC, and I got the Seas in Social Service Award in 2015. Wow, Renuka ji, that's really a noble cause, I would say, and I'm sure आपका शो देख के, आपका प्ले देख के जितने भी लोग इंस्पायर हुए होंगे और जिनको इमोशनली आपसे कनेक्ट कर पाए, और जिन आपके इस प्ले की वजह से जितनी भी बेटियां बची होंगी वो आज आपको शुक्रिया कर रही होंगी कहीं ना कहीं, और बहुत ही अच्छा कॉज है। और आपने जो कहा है, आपकी बेटी ना सिर्फ आपका नाम रोशन कर रही है बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। एंड मैं तो बोलूंगी कि आज हमारे शो में जो तीनों स्पीकर्स हैं वो भी किसी ना किसी की बेटियां हैं, और वो बहुत ही अच्छा नाम कर रही हैं। सो बेटी तो बचाना ही चाहिए। सो आई थिंक सो थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ मैं, पर
show must go on. We will move on to Pradnya ji. So Pradnya ji, अभी कुछ दिन पहले जब मैं आपसे फोन पे बात कर रही थी तो मैंने आपको पूछा हाउ आर यू डूइंग एंड यू सेड नेहा आई एम वेरी बिजी, मैं तो संडेज को भी ऑफिस जा रही हूँ, मैं 24/7 काम कर रही हूँ. तो मैंने बोला क्या हो गया प्रज्ञा जी, इतना सारा काम, तो आपके स्टाफ कुछ कहते नहीं है? तो आपने मुझे बताया कि आपके स्टाफ ने ही आपको बोला है कि मैडम हमें तो काम करना है, वी डोंट वांट लीव, और हमें 6 महीने तक बस काम पे काम आप देते जाओ. तो मैं तो बहुत ही सरप्राइज हो गई, आपको इतने अच्छे स्टाफ कैसे मिल गए? हमें तो ढूंढते रह जाते, हमें मिलते नहीं है, हमें भी सोर्स बताइए. Yes. See, कैसे रहता है कि after every successful man हम बोलते हैं कि there is a hand of woman. So after every successful boss, there is a hand of your staff, your team. Team is very important, what I feel. जैसे हम लोग अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं, वैसे हम लोग अपने टीम का भी ख्याल हमको रखना चाहिए. That is very important. Like what policy I have in my office, every day in the morning, I see everyone's faces. We do just 5 minutes puja in my cabin, and I see everyone. Okay, then I feel, oh, everyone is happy. If someone is sad or something is running behind or something is uncomfortable, then I just talk to that person and then make him comfortable. I solve that problem. So that is very important. Team अगर आपकी healthy हो, उनकी सोच healthy हो, positive हो, तो always 99% I can say, it's not even this may play a very important role in your office. That's what I feel. And team को मैनेज करना, ठीक है, हम लोग आते हैं, काम करते हैं, फुल टाइम वी आर बिजी विद टेंशंस, वो तो चलता ही रहता है, बट 1-to-1 टच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम कभी घूमने जाते हैं एंड गेटिंग गिफ्ट्स टू देम, दे फील रियली वेरी नाइस, दे उनके लिए इतना बहुत उनको फीलिंग रहता है, अरे अपना बॉस तो अपने लिए इतना ख्याल रखता है. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू वन एग्जांपल. जब मैं 4 months लॉकडाउन था, तो लाइक 20 या 22 को लॉकडाउन मार्च में चालू हुआ, तो आई जस्ट कॉल्ड एवरीवन कि ठीक है आपका अकाउंट नंबर बताओ, आई विल ट्रांसफर सैलरी. एवरीवन सेड नो मैम, वी विल वेट. So April, May, June, and June it started. So when everybody came, I just asked them, why you are refusing to get your salary? So they said, no ma'am, even we can understand, we have to be along with you. So that was very important and very touchy for me. And after that, my staff also told me, ma'am, don't worry, we are going to work on Sundays and coming back to track, because everyone have fallen behind because of this lockdown. So that was the time when I became emotional, because मेरा staff अगर मेरे लिए इतना care कर रहा है, मेरे लिए इतने think कर रहा है, तो it's really important. So what is my message is, when you're working, you should also take care of your team. It is very important. You have to understand them. So this is one thing, and one more thing I would like to add in this, your family support is also very important. For example, जब मैं बचपन में पढ़ाई करती थी तो मॉम डैड कन्वर्सेशन करते थे, अरे लेडी है, गर्ल है, कुकिंग आना चाहिए, ऐसे मेरे घर पे कभी नहीं हुआ. They used to say, you academically you should excel yourself, आप अपना नाम कमाओ, whatever is there, whatever the sources are there, whatever difficulties are there, we are here to challenge, we are here to face, but पढ़ाई पे ध्यान दो. So that's what I feel कि if everyone do the same thing, it will be very useful. Similarly, one more thing in our India, after marriage, you never get support from your in-laws, but in my case, they were always supportive. One more example I will tell you. In my office, whenever I'm working, my father-in-law is always there. He just treats me like a son, not like daughter-in-law. That is very important message I would like to tell everyone. He will talk to me like a son, and it gives me more energy, more confidence in working. Similarly with my mother-in-law, I still remember जब मैं CA एग्जाम के लिए जाती थी, because I cleared my CA after my marriage. So she used to sit with me during lunch and paper रहता था, तो she used to make me calm, and then she used to talk to me. मेरा पूरा खाना होने तक she used to be with me, and door तक मुझे छोड़ने आती थी. That I still remember. So these things are very important. Your family support is very important, and husbands are always supportive, so there is no doubt in that. But still, I would like to tell you, अगर parents और in-laws सभी जन अगर ऐसे रहते हैं, तो it's very easy for us to excel in your life. Back to you, Neha. और प्रज्ञा जी, ये जो आपने टीम बिल्डिंग पे और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे की नोट दिया है, बहुत ही अच्छा है. आप उनकी केयर करो, वो आपकी केयर करेंगे. और बहुत अच्छे से आपने बोला है कि अगर आपके इन-लॉज, आपकी फैमिली सब आपका सपोर्ट कर रहे हैं, डिफिकल्टीज तो होती ही है सबकी लाइफ में, लेकिन वो इजी हो जाता है, उनको तय करना और अपने सक्सेस को अचीव करना इजी हो जाता है.
एंड आई बिलीव ये दोनों एंड से होता है। आप भी एक बहुत अच्छी बेटी बनी होंगी अपने इन लॉज के लिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे पेरेंट्स बने। एंड रियली कुडोस टू योर इन लॉज कि आपने उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया। रियली ग्रेट। Thank you. सो विद दिस वी विल मूव ऑन टू जया जी। जया जी, वी आर so engaged in our life, then suddenly you know this कोविड केम इन, और फिर सडनली हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए, हमें लॉकडाउन कर दिया, हमारे घरों में बंद कर दिया और बोला कि नहीं नहीं अब तो आप बाहर जा ही नहीं सकते। और सडनली एक स्टॉप लग गया हमारी लाइफ पे, यू नो कंपल्सरी हम घर से बाहर नहीं जा सकते। तो हम चाहते थे, जब ये लॉकडाउन अचानक से आया था, हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हमें लग रहा था नहीं नहीं रूटीन चल रहा था, कैसे ब्रेक लग गया है, हमें चलते रहना चाहिए। सो आपने कोविड को कैसे हैंडल किया और आप क्या कहना चाहेंगी इस जो लॉकडाउन पीरियड था इसके बारे में? Okay, thank you so much Neha for asking this question because this one is the closest to my heart. उसका रीजन है, अगर आपको पता होगा कि इंडिया में अपन लोग सगाई और शादी के बीच वाले पीरियड को गोल्डन फेज बोलते हैं ना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ। नए रिलेशंस होते हैं, नई नई चीजें, नई नई फीलिंग्स। ये जो लॉकडाउन था ना, मेरे लिए गोल्डन फेज था। यहाँ पे मेरे नए, हाँ, बिकॉज यहाँ पे उसका रीजन मैं बताऊंगी, थोड़ी देर में मेरी स्टोरी शेयर करूंगी, बट इट हैज बीन, अभी भी चल रहा है मेरी लाइफ का ये गोल्डन फेज। यहाँ पे नई जो फीलिंग्स है, किस रीजन आई विल शेयर, नई फीलिंग्स है, मैंने नए दोस्त, नए रिलेशंस, नई जगह ज्वाइन की है। और उस तो मैं जस्ट एक बार स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट हुआ था तो मैं भी हर दूसरे पर्सन की तरह थी, घर बैठ के बोर होना, इरिटेट हो गए थे, अनॉयड हो गए थे कि यार घर पे रहकर सब कुछ कैसे मैनेज करें। यहाँ पे मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट था, एग्जाम्स अभी कैंसिल नहीं हुए थे और उनका डेट्स ड्यू था, तो एवरी डे वो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम एग्जाम्स के डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। तो वो सब बर्डन में सबकी तरह मैं भी पूरा अपनी जो घर के अंदर थी अनॉयड थी। लेकिन आफ्टर आई थिंक 10 to 15 डेज अब मुझे ये रियलाइज हो गया था कि यार मैं अकेली तो हूँ नहीं जिसके ऊपर ये जो चैलेंजेस है या ये सिचुएशन है, द होल वर्ल्ड इज फेसिंग दिस सिचुएशन। और दिख रहा था कि 3-4 महीने एटलीस्ट ये सिचुएशन कंटिन्यू होने वाली है। तो व्हाई शुड आई क्रिटिसाइज एंड वेस्ट दिस टाइम? तो इससे अच्छा अगर मैं इस टाइम को यूटिलाइज कर लूंगी तो माइट भी जो लाइफ में मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बचपन से मैं पढ़ाने में लग गई थी, तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पाई थी। तो मुझे वहां पे ये समझ में आ गया था कि ये बेस्ट टाइम है टू डू द थिंग्स व्हिच आई हैव नेवर डन, जिसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने स्टार्ट किया था उसके लिए पोएट्री लिखकर। मैंने कुछ छोटी मोटी पोएम्स लिखना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे कुछ मोटिवेशनल कोट्स, कुछ मोटिवेशनल मैंने कहानियां भी लिखी हैं। देन आई मेड माय यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने ये सब शेयर करना स्टार्ट किया। तो उसका लाइफ में सबसे ज्यादा मजा क्या था, अब जब लोग मुझे कभी भी कॉल करते हैं ना, तो वो मेरे एज ए टीचर या कोविड की बात नहीं करते थे, वो सीधा मेरी पोएट्री की बात करते थे। They used to appreciate my work कि आप इतना अच्छा लिख रहे हो। तो ऐसे आई वाज वेरी हैप्पी विद टीचिंग। अब जैसे मैंने बताया टीचिंग मेरा पैशन है, लेकिन जो कहते हैं ना दाल पे तड़का लगाने की जरूरत होती है, तो ये पोएट्री ने ना मेरी लाइफ में को तड़का लगा दिया। इट हैज गिवन न्यू फ्लेवर टू माय लाइफ। अब मतलब मुझे ऐसा पता है कि अब मैं पढ़ाऊंगी ना तो मुझे साथ में लिखना तो है। अब जब मैं लिखना स्टार्ट हुई ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि लिखने के लिए नॉलेज बहुत चाहिए। अब अभी तक मैंने क्लास 6 से पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मेरा सिर्फ बुकिश नॉलेज था। आप मुझे कॉमर्स से कुछ भी पूछ लो, जो भी है वो सब जवाब दे सकती हूँ, पर आज तक मेरे को भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं पता है, मैंने वो बुक भी नहीं पढ़ी थी। तो आई स्टार्टेड रीडिंग। तो पहले मैं लिखना स्टार्ट किया और लिखने के लिए जरूरी था रीडिंग, तो आई स्टार्टेड रीडिंग। कुछ जो फेमस ऑथर्स हैं उनकी बुक भी रीड करना स्टार्ट किया। तो ये जो 2 हैबिट्स मैंने अभी डेवलप किए ना, रीडिंग और राइटिंग की, आई थिंक दे हैव मतलब लाइफ टाइम में इसको चेरिश करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये कोविड का साइड इफेक्ट था मेरी लाइफ में। एक और जो चीज कोविड ने मुझे सिखाई है वो ये था कि मैं, क्योंकि बहुत यंग एज से स्टार्ट कर दिया था मैंने पढ़ाना, तो मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज के स्टूडेंट, सीए, सीएस, एमबीए, सीएमए, हर तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। आप मुझे कोई भी सब्जेक्ट बोल दो, कोई भी लेवल बोल दो, 11th पढ़ाना है, वो मैं हाँ भरती ले लेती थी। क्यों? सीखा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ग्रैब कर लो। लेकिन इसमें क्या हो गया कि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन बन के रह गई। आप मुझे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने को बोलोगे आई कैन टीच, लेकिन अगर आप बोलोगे कि किसमें मास्टरी है तो वो मैं कभी नहीं कर पाई। तो अभी जब मैं थोड़ा कंपैरेटिवली फ्री थी तो मुझे एक विजन मिल रहा है कि नहीं, अब आगे जब मैं वापस लॉकडाउन के बाद स्टार्ट करूंगी तो मुझे फोकस करना है, अब मुझे मास्टर करना है। तो कोविड हैज मतलब गिवन दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स इन माय लाइफ, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा फेज रहा है। तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर मार्केट से आप एक पेंसिल खरीद के लाते हो, जब तक उस पेंसिल को शार्प नहीं करते हो ना, तो जिस पर्पस के लिए पेंसिल खरीदा आप यूज नहीं कर सकते।
तो अपनी लाइफ में भी जो ये चैलेंजेस आते हैं ना, दे आर लाइक द शार्पनर, और हम वो पेंसिल है। जितने चैलेंजेस आएंगे उतना आप शार्प होके पॉलिश होके निकलोगे, और आप अपनी लाइफ के जो गोल्स है वो अचीव कर पाओगे। तो कभी भी अपने चैलेंजेस से डरना नहीं होता है, उस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना होता है, उसको पॉजिटिवली लेना होता है। और अगर ये एटीट्यूड हमने सीख लिया ना, ट्रस्ट मी, यू कैन डू वंडर्स। वाह वाह जया जी, आपने कोविड को एक नया इंसाइट दे दिया है कि आपने इतनी सारी चीजें खोज निकाली अपने बारे में कोविड में। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी अब इसका यूज करेंगे और वो भी अपने बारे में काफी कुछ चीजें खोज निकालेंगे। आई थिंक सो मैं भी बैठूंगी आज रात को। सो बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन था, बहुत मजा आया मुझे तीनों स्पीकर्स के साथ। और इस खूबसूरत डिस्कशन पे मुझे फहमीदा रियाज जी जो हैं उनकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं, तो मैं वो दोहराना चाहूंगी हमारे स्पीकर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। वो पंक्तियां कुछ इस तरह से है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, रहजन द हाईवे रॉबर्स। सो इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं, प्रैक्टिकल हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं और सब रिलेट कर सकते हैं आई थिंक सो इससे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सो इन पंक्तियों थैंक यू। इन पंक्तियों के साथ हम मूव करते हैं आज के हमारे एंटरटेनमेंट राउंड के लिए। ये एंटरटेनमेंट राउंड जो है वो मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, और जो हमारे व्यूअर्स से मैंने प्रॉमिस किया था कि उनके लिए एक सरप्राइज है। सो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आज का सरप्राइज ये है कि ये जो गेम राउंड है ये सिर्फ हमारे स्पीकर्स के लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है। बालकिशन सर, मैं चाहूंगी कि आप भी पार्टिसिपेट करें इसमें, और इसमें सबको पार्टिसिपेट करना है। मैं खुद पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। Yeah, sure, I will definitely. And हमारे साथ सीए आलोक जी भी है, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम पुणे, जीबी मोदी सर भी है। All will definitely participate. Yeah. वाओ। सो फ्रेंड्स, आज का गेमिंग राउंड जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ये क्वेश्चन सबके लिए सेम रहेगा, हमारे स्पीकर्स के लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए। हमारे जो सारे ऑडियंस और व्यूअर्स हैं वो चैट में अपना आंसर लिख सकते हैं, और ये फनी राउंड है, आपको फनी से फनी आंसर देना है, और जो इंस्टेंट आपके माइंड में आएगा, आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, हमारे स्पीकर्स को भी टाइम नहीं मिलने वाला है। जो भी इंस्टेंटली माइंड में आ रहा है, एक शब्द या एक लाइन में आपको आंसर देना है, और जो फनी आंसर्स होंगे चैट में वो मैं रीड करूंगी। सो शैल वी स्टार्ट? Yes. ओके, सो अभी रिसेंटली हमारा इंडिपेंडेंस डे हुआ है। सो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंस डे को लेकर ही है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप ना छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर मैं बोलूंगी मेरा आंसर तो मैं बोलूंगी वो 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों से मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। सो विद दिस, रेणुका जी, आप किससे छुटकारा पाना चाहेंगी? पता नहीं, रूटीन से तो मुझे, रूटीन से मैं इतने दिन चाहती थी पर लॉकडाउन में वो मुझे दे दिया। ओके, तो अभी रेणुका जी रूटीन से छुटकारा पाना चाहती हैं। प्रज्ञा जी? टीवी, ऑब्वियसली पूरा दिन टीवी चालू रहता था, पूरा दिन। वाओ। जया जी? मैं घर के काम से लास्ट 5 मंथ आई हैव डन लॉट ऑफ हाउसहोल्ड वर्क, उससे फ्री ओके, बालकिशन सर? कोविड एंड कोरोना से, वो भी इसलिए कि दोस्तों के साथ घूम सके और बाहर जा सके। ओके, सो मोदी सर, आप आंसर देना चाहेंगे? या
पॉजिटिवली। काम, क्रोध, मत्सर और लोभ। वाओ। आलोक जी। काम, क्रोध, मत्सर और लोभ। हाँ, मैंने तो ऑलरेडी अपना आंसर दे दिया, पप्पू के ट्वीट्स। आई वांट टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम पप्पू। Wow, that's really a funny one. Okay, so with this we will move on to second. हमारे व्यूअर्स ने भी आंसर दिया है सुबह सुबह उठने में, राहुल का। ओके, वाओ। सो वी विल मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। वन थिंग यू कैंट लिव विदाउट। मैं अगर बोलूंगी तो मी, माई सेल्फ, बिकॉज आई एम द बेस्ट। रेणुका जी। Live without my work. ओके, जया जी। मेरे लिए चाय। चाय। ओके, हाँ, प्रज्ञा जी। Definitely office work. वाह। बालकिशन सर। जॉगिंग एंड रनिंग, मतलब जब तक पसीने नहीं आ जाए, पसीनों से भीग ना जाए, वो जो फीलिंग है वो नहीं आए, तो ऐसा लगता है कि डे अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। वाह। आलोक जी। माय व्हिstling। वाह। मोदी जी। माय हॉबी, मेरा हॉबी रोज नई चीज सीखना। ओह वाह, दैट्स वंडरफुल। हमारे व्यूअर्स ने भी आंसर दिया है, फैमिली, मॉर्निंग रनिंग, माय ड्रीम, टॉकिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। वाओ, दोज आर ब्यूटीफुल आंसर्स। विद दिस वी विल मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? If I would say me going in a off mood. So, Pradnya ji. Two-wheeler driving, riding two-wheeler. I get scared of. Okay, Jaya ji. बाथरूम में चिपकली। Okay, Renuka ji. चिपकली हर जगह, किधर भी चिपकली। Balkishan sir. No fear is my biggest fear. Okay. मोदी जी। मोदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? 4-wheeler ड्राइविंग। ओके, आलोक जी। लूजिंग फ्रेंड्स। वाओ। हमारे व्यूअर्स ने भी आंसर्स दिए, एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन, नथिंग, स्टेइंग होम। ओके ओके, सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाला है। Which drink defines you and how? You have to tell us how also. मैं अगर मेरा बोलूंगी तो कॉफी, because it is slightly sweet, slightly strong and bitter yet enjoyable. So, Renuka ji. वाटर की जैसे अनअफेक्टेड होता है कोई भी चीज से, और किसी से घुल मिल भी जल्दी जाता है जिसके साथ हो जाता है। जया जी। मेरे लिए तो मैं टी ही बोलूंगी। उसका मेनली क्लास में, क्योंकि मैं जब भी क्लास में होती हूँ मैं बहुत कड़क रहती हूँ। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, पर मैं थोड़ी सी उसमें मिठास ऐड कर देती हूँ बच्चों को टाइम पास करा के, ताकि वो परफेक्ट टेस्ट बना रहे। ओके, प्रज्ञा जी। Fruit juice, actually, any fruit juice, seasonal fruit juice, because I really feel energetic, और it gives you more, जैसे हम cold drink वगैरह पीते हैं, it does not give you more, what you say, happiness. But when you eat, when you have your fruit juice, you also feel internally very happy, energetic, and nice. Okay, Balkishan sir. कोकोनट वाटर, नारियल पानी। हम जॉगिंग रनिंग के बाद डेली नारियल पानी पीते हैं तो उसका जो टेस्ट आता है वो अलग ही आता है, एंड वी फील कि वो एक नई एनर्जी हमें क्रिएट कर रहा है। सो नारियल पानी। ओके, आलोक जी। सोडा विद लाइम, some salt, some sweet, because Okay. it reflects my life. Oh, Some salt, wow. some sweet, and energy also. मोदी जी। कोई चॉइस नहीं है ऐसा खास। ओके, हम one thing I want to explain over here. मेरी माँ ने एक Yes. चीज सिखाई है, हर चीज को अमृत बना के पी लो, सबसे श्रेष्ठ वही अनाज है। वाओ, बहुत ही अच्छा थॉट है। शेफाली जोशी जी, आप भी शेयर करना चाहते हैं कुछ?
Yes, Okay. I've already mentioned lime squash. ओके हमारे व्यूअर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आया है, टकीला, पीते ही झटका लगे और मन करे एक और ले. वाओ. ओके सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स यू एंग्री? आई से हंगर. ओके सो प्रज्ञा जी. Mess everywhere. If suppose at home, if you see mess by kids, I get angry. Even if in office some dust is there, I get angry. ओके जया जी. मेरे लिए अगर किसी की वजह से मेरी चाय ठंडी हो जाए, चाय ठंडी हो जाए. लेट मी एंजॉय माय टी, फिर जो बोलना है बोलो. ओके रेणुका जी. झूठ बोलना. ओके बालकिशन सर. ठीक है. सॉरी मैंने सुना नहीं क्वेश्चन. व्हाट मेक्स यू एंग्री? वेरी वेरी एंग्री. मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है वैसे तो अभी. तो ओके ओके सो आलोक जी. Present politics going in the country, that makes me very angry. ओके मोदी जी. Corruption in government offices. वाओ दैट्स रियली गुड वन. ओके सो शेफाली जी ने कहा है प्रोक्रेस्टिनेशन, और लेटली सिंस लॉकडाउन इट्स गॉसिप्स. वाओ गॉसिप सुन के तो विनोद, किसी ने विनोद भी लिखा है. वाओ विनोद रियली मेक्स मी एंग्री टू. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is one thing which is always there in your handbag? I would say pepper spray. Jaya ji. लिपस्टिक. Renuka ji. Comb. Okay. Pradnya ji. License. Okay. I'm in Pune, so it's very important. Balkishan sir. हमारा तो मोबाइल ही रहता है हमारे साथ, उसी में सब कुछ आ जाता है. Okay. Modi ji. Okay. Alok ji. I don't keep a bag, but yes, I keep a pocket comb always. Okay. ओके किसी ने रिप्लाई किया है चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट. रिया जी ने रिप्लाई किया है. सो फ्रेंड्स जब ऑलवेज रिमेम्बर रिया के बैग में चॉकलेट है. ओके होल मेकअप किट. वाओ. सो 1+60 जो भी है आप अगर जानते हैं, शी हैज अ मेकअप किट फॉर यू. ओके सो किसी ने लिखा है बीवी का फोटो. ये तो झूठ है, मैं नहीं मानती. Hope this is not from Praveen. नहीं 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 वो कभी नहीं रखते. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निकनेम यू हेट द मोस्ट. आई वुड से स्वीटी, इट साउंड्स सो बिची. ओके जया जी. मेरा नाम पहले मतलब घर का नाम बबली है, which I don't like because तो बहुत सारे songs थे, सब चिढ़ाते थे उस नाम से. ओके सो प्रज्ञा जी. Actually, I hate all nicknames. I don't like because we have got such a good name. ट्रू. ओके रेणुका जी. Yeah, I also hate all nicknames, but especially Babya. That's going on in one serial now. ओके ओके बालकिशन सर. Lots of nicknames. मेरे अलग अलग फ्रेंड्स अलग अलग नाम से, but mostly called BK. Okay. Because Balkishan is very 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 long name. और काफी बार तो मेरे साथ ऐसा होता है जिन्होंने नाम ही सुना होता है वो पहली बार मिलते हैं तो ढूंढते हैं वो बालकिशन जी कहाँ है. मैं बोला मैं ही हूँ बालकिशन. Okay. आलोक जी. Yeah, I have my family nickname as Sham. And in my friend circle, I am called as a boss. Okay. बट वो तो खूबसूरत नाम है ना, आपको अच्छे नहीं लगते हैं ये निकनेम्स? Yeah, I like them very much. ओके क्वेश्चन ऐसा था निकनेम जो आपको पसंद नहीं है. निकनेम जो पसंद नहीं है, ऐसा तो कोई निकनेम मेरा नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है. ओके इनफैक्ट जो एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे को नाम दिया था वो भी मैं आई एज अ रिस्पेक्ट एंड वेरी जॉली. आई वाज यूज्ड टू कॉल्ड एज कल्लू व्हेन आई वाज इन चाइल्डहुड. And Okay. I still relish that nickname.
ओके, सो मोदी जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मेरा निकनेम भी, मेरा ओरिजिनल नेम गोवर्धन है और मुझे मेरा निकनेम ज्यादा अच्छा लगता है जो कि सुनील था। ओके, वाओ। सो फ्रेंड्स, विद दिस वंडरफुल राउंड, आई थिंक सो आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया और मुझे बड़े मजा आया हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे स्पीकर्स के साथ, और जो भी हमारे साथ बालकिशन सर जी थे, आलोक जी थे और मोदी जी थे। बहुत मजा आया आज के राउंड में। और विद दिस आई वुड रिक्वेस्ट बालकिशन सर टू से अ फ्यू वर्ड्स। So thank you very much, Neha, for nice coordinating and host that event. And we are also very thankful to Renuka ji, Jaya Agrawal ji, and Pradanya ma'am, and lots of sharing, lots of experience, lots of learnings, and the session was full of energy. And lots of motivation we all the viewers, members, and students get from here. एंड एक बात मुझे ध्यान आ रही है जो रेणुका जी ने बताया योगा से रिलेटेड, तो आई एम ऑल्सो वेरी रेगुलर इन योगा, मेडिटेशन एंड लाइफ। और उन्होंने पतंजलि को मैंने भी काफी स्टडी किया, पढ़ा है। तो उन्होंने योग के जो 8 सूत्र बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, कहीं ना कहीं प्रत्याहार को वो भूल गए थे। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो रियली वो केवल जो है ये सभी आयाम पे काम करते हैं, हमारे फिजिकल, मेंटल, और ये है। तो डेफिनेटली हमें इनसे थोड़ा जुड़ना चाहिए। एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी गेट। सो हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, इट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड जो ये कोरोना का और ये लॉकडाउन का टाइम है, इसकी मेरी अगर बिगेस्ट अचीवमेंट देखें तो आई हैव स्टार्टेड टू गेट अप अर्ली एट 4 AM। और जब से मैंने स्टार्ट किया है मेरे बहुत से काम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं एंड आई फील वेरी एनर्जेटिक। तो दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लॉकडाउन। एंड थैंक यू वेरी मच मोदी जी, आलोक जी, एंड ऑल व्यूअर्स। एंड नेहा ने स्पेशली बहुत मेहनत की है इसके लिए, और आज जो इन्होंने नया राउंड भी किया। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एंड ऐसे ही हम लोग जुड़े रहेंगे, और डेफिनेटली आपके कुछ भी सजेशंस हो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए। एंड वी विल ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक दीज ऑल द प्रोग्राम बेटर एंड बेटर। सो थैंक यू वेरी मच नेहा जी। थैंक यू बालकिशन सर, दोज आर रियली इंस्पायरिंग वर्ड्स। और आपने जो योगा पे फोकस डाला है, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इससे कुछ इसको अपने साथ लेके जाएंगे। मैं खुद पर्सनली अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। और विद दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक all our speakers for the day. Speakers, you had been wonderful. We enjoyed a lot and we learned a lot from you. And with this, I would say thank you. And we will meet in the next session. Thank you so much, Neha, for beautifully hosting this. And thank you, sir, for giving us this opportunity. Thank you, Jaya ji. Yes, Renuka ji, anything you want to say finally? Just want to say thank you. And we'll be watching the show on every Tuesday. So thank you. Thank Yes. you, Renuka ji. प्रज्ञा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? Yes, definitely. Best of luck to both of you, and it's really a good platform, which I feel, and you're going to rock. Thank you. Our are always there with you guys. Thank you so much. Okay, if can I take just 1 minute to share one small poetry of mine to end it with a positive note? Sure, Yes. जया जी. Okay, तो एक बहुत छोटी सी पोएम शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आज सबसे बहुत मोटिवेशन मिला है, ये सीखने को मिला है कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसी पर है, love yourself a little more, you have so much to adore, those useless questions keep them outdoor, keep all those worries outdoor, love yourself a little more, life has so much in store, you just need to explore, find yourself to the core and just open that hidden door. वाह जय जी, बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे। बहुत खूबसूरत लाइंस थी। You should really love yourself a little more. I am loving myself. Thank you. थैंक यू। So इसके साथ मैं आप सबसे
विदा लेना चाहूंगी। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम चैनल। बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय। बाय।